this. Another form of asking numericals on the Newton's second law of motion is based on graph. That means that you have been given the VT graph of an object. Okay. Suppose this is the VT graph of an object. Okay. Time axis पे time plotted है. Say at an interval of 1 second. और velocity axis पे velocity plotted है. Say 10, 20, 30 meter per second. And you have been asked that this is the VT graph of an object of mass 3 kg. एक ऑब्जेक्ट है मास 3 kg, उसका VT ग्राफ is given. What is the force acting on the object? What is the force acting on the object? Now going back to the mathematical form, force calculate करनी है. तो what all things will we require for calculating the force using the second law of motion? What all things will we require? What type of motion is represented by this graph? First of all, I would like to know what type of motion is represented by this graph. We have already done VT graphs in the previous chapter. The velocity of the object is decreasing as the time is increasing. Straight line falling down. It's a uniform retardation graph. और ultimately object की velocity कितनी हो गई है 3 सेकंड के बाद? 0. मतलब object has come to rest. So ऐसी situation है, ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया t0 पे, और 3 सेकंड्स के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया. जरूर कोई फोर्स लगी होगी तभी ऐसा हुआ है, क्योंकि अदरवाइज तो फर्स्ट लॉ कहता है कोई चेंज हो ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट में. ठीक है, आपको वो फोर्स ही निकालनी है. ओके, नाउ व्हाट फॉर्मूला ऑफ फोर्स डू वी यूज? F इज मास इनटू एक्सेलरेशन. अब मास तो यहाँ क्लियरली गिवन है 3. ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे आएगी? Who will answer? Acceleration कैसे? Class, are the steps clear to all? I have substituted for acceleration as v minus u by t. हमने ये पूरा एक तरह से, रिमेंबर हम स्लोप कैलकुलेट करते थे ग्राफ की, तो हमने एक तरह से ये पूरा ट्राइंगल कंसिडर कर लिया स्लोप के लिए. ये टोटल हाइट डिवाइडेड बाय ये टोटल बेस. वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम. वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 30 से 0 हो गई है, तो चेंज विल बी 0 minus 30. फाइनल माइनस इनिशियल divided by time. It took 3 seconds. So 3 is in the denominator. Okay. So 3 goes away. I am left with minus 30 Newton. Force negative aa rahi hai. What does this indicate? What is this negative sign indicating here? Minus 30 Newton का क्या मतलब है? What is the negative sign indicate करोगे? ठीक है class? So the negative sign here indicating retarding force. We calculated F as minus 30 Newton. And this is the third type of numerical that we did on Newton's second law. You will be given the VT graph. VT graph से आपको slope निकालनी होगी, slope से acceleration आएगी, और वो acceleration आप F is equal to mm में put करोगे and you will be calculating. So this is the next question, that you have been given a graph, VT graph of an object of mass 20 gram, and you have to find the force acting on the object. So solve using the same format that we just discussed. Common answer. So how do we solve? Is we write force is m v minus u by t. The first step that we do here is 20 grams को क्या करेंगे? kg में convert. SI units. You have to work in SI units. Okay. V की जगह क्या आएगा? Final velocity 0. U की जगह क्या आएगी? Final velocity, oh sorry, initial velocity 150. Okay. और t की जगह क्या आएगा? 6 seconds. ठीक है, 0 गया यहाँ पे, ये 2 से ये 3 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 6. ठीक है, 2 3 6. एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विद? माइनस 150 डिवाइडेड बाय 300. यही बचा, माइनस 150 न्यूमिनेटर में और ये 100 इंटू 3, 300 इन द डिनोमिनेटर. सो 15 2 30, तो ये हो गया माइनस हाफ न्यूटन. आपने फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है आंसर को. इट विल बी minus 0.5 Newton. Okay, that is how we calculate. Minus 0.5 Newton. Next type of question that is asked on the Newton's second law of motion is conceptual questions. Very important. जो हमने
फॉर्मूला किया है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी से। इससे हम कई डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस भी हैं जिनको जस्टिफाई कर सकते हैं, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। तो उसके ऊपर बेस्ड हमें कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, वी विल बी राइटिंग देम अंडर द हेडिंग ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स second law of motion. Class, I again repeat, you will be rejoining. Okay, so applications of Newton's second law of motion, मतलब ऐसी कौन सी situations हैं जहां पे आप न्यूटन सेकेंड लॉ से उनको जस्टिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वन वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन इज दैट अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स, या फील्डर लिखा होता है, अ फील्डर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। A cricket player or a fielder lowers his hands while catching a fast moving ball. This is a common observation that you people have made. और जो बच्चे खेलते भी हैं cricket, they must be very much aware of this while catching a fast moving ball. And not only in cricket, in your daily life also. हमने ऑब्जर्व किया है, अगर आपको कोई भी फास्ट मूविंग चीज या कोई हैवी चीज कैच कराई जाए तो बड़ी नॉर्मल सी टेंडेंसी है हमारे में कि आपको अपने आप रिफ्लेक्स आता है कि हम हाथ पीछे कर लेते हैं। ओके, जैसे ये हैवी सी बुक है मेरे पास, अगर मैं किसी को ऐसे पास करूंगी, आइडियली बुक को ऐसे करना नहीं चाहिए। ओके, सॉरी, मैं अभी एग्जांपल देने के लिए ऐसे कर रही हूँ। सपोज ऐसे मैं यूं, एक मास है सपोज, उसको यूं कैच कराती हूँ, तो बड़ी ऑब्वियस सी रिफ्लेक्स सा एक्शन होता है, ये टेंडेंसी होती है हमें कि जब हम पकड़ेंगे उसको हमारा हाथ अपने आप पीछे चला जाएगा यूं। ठीक है, वी आर ट्राइंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू बाय दिस रिफ्लेक्स इज वी आर ट्राइंग टू लोअर द इम्पैक्ट। जो ये ऑब्जेक्ट जब हिट करेगा हैंड पे, या क्रिकेट प्लेयर के केस में जो बॉल इतनी फास्ट मूविंग आ रही है वो जब हिट करेगी हाथ पे, उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए ये एक नेचुरल टेंडेंसी है हमें कि व्हेन द मास इज कमिंग वी विल पुल आवर हैंड्स बैकवर्ड्स। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें बोल दिया जाए कि नहीं मैं ये लोड डाल रही हूँ हाथ पे, आपने हैंड स्ट्रेट रखना है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप पकड़ तो लोगे लोड को, बट यू विल बी एबल टू फील अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन दी हैंड। ओके, अगर बॉल बोल दी जाए कि अब तुमने हाथ नहीं पीछे करने, बॉल कैच होने को आ रही है, वहीं रख के कैच करनी, आप कर तो लेंगे, बट अगेन द इम्पैक्ट माइट बी मोर। तो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द इम्पैक्ट बाय डूइंग दिस। वो कैसे? वो है बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स और जो टाइम है, कौन सा टाइम, फॉर द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो ऑब्जेक्ट आपको कैच कराया जा रहा है या फेंका जा रहा है, उसको तुम कैच करते हो यहाँ पे, या उसको तुम थोड़ा और टाइम देते हो और उसको थोड़ा नीचे जाके कैच करते हो, तो इसमें फर्क क्या आया, यहाँ इस ऑब्जेक्ट को या बॉल को कैच कर लेने में या पीछे जाके कर लेने में तुमने टाइम बढ़ा दिया। कौन सा टाइम? फॉर दिस ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। और टी बढ़ने से क्या होगा, जो ये फोर्स अप्लाई करेगा हाथ पे वो कम हो जाएगी। ओके, सो बाय इंक्रीजिंग द टाइम वी रिड्यूस द फोर्स, और the cricket player lowers his hands while catching a fast moving ball because force is inversely proportional to time. Okay, as t increases, f decreases. Okay, so less impact on his hands. ये रीजन सबको समझ में आ गया? आपने लिखना है, जब पेपर में आप लिखेंगे दिस इज ड्यू टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बिकॉज एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ड्यू टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ मैं यहाँ एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख रही हूँ, 2l लिख दिया मैंने, सेकेंड लॉ को आप पेपर में पूरा लिखेंगे। दिस इज ड्यू टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, एज t इंक्रीजेस एफ डिक्रीजेस। बाय पुलिंग हिज हैंड्स बैकवर्ड्स, बॉल उसने अपनी ग्रिप में ले तो ली होती है ताकि इधर उधर भागे ना, पर उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा और देते हैं ताकि टी बढ़ जाए बॉल को रेस्ट पे आने का, और वो कम इम्पैक्ट डाले हाथ पे। ओके,